Good afternoon, class. So in the previous class, we have completed range of the function. I gave you some questions on range as well as even odd function. So we'll be discussing the DPPs also. In the meanwhile, you had a test. So today's topic, first topic will be identical functions. Identical functions or equal functions. So let me write the conditions first. Two functions are said to be equal if I will write this. I double F means if and only if. Okay. So are said to be equal if and only if their domains are same. Second one, their ranges are same. And third one, their graphs are same. Their graphs are same. Graphs are same means overlapping. That means you cannot identify, you cannot differentiate the two graphs. This is the meaning of graphs being same or overlapping. So if the two functions satisfy these three conditions, they are called equal functions or identical functions. Okay. Only this much is what you need to understand. Now based on that, I will take some examples and we have to identify whether they are identical or not, and if they are not identical, what is the reason. Okay. So here we have one function fx. We'll make a long table. There will be like 10-12 examples. Okay. There will be a function gx. If they are identical, then you will take here. If they are not identical, you will take here. And then what is the reason? Obviously, you will write the reason for not identical. Why? Because if they are identical, then obviously they will be satisfying these three conditions: domain same, range same, graph same. So there you need not to write the reason that why they are identical. Obviously, they follow these three conditions. That is why. Okay. So I'm starting with the first example. X square upon x and x. Okay. So basically, the question is whether x square upon x is equal to x. क्या x square upon x x के equal है या नहीं? You have to give the answer with reason. So Nigel, what do you think whether the two functions are identical or not? Yes, sir. They are identical because x square upon x is x. Anyone else with some other answer? Shreya. No. Sir, no. Okay.
Yeah, you Sir, what proceed. if the x is negative number? Then they won't be identical. No, why? You put any x as negative, because then the output will be negative in both, whether it is x square upon x or it is x, let's say minus 2. So if you put minus 2 in gx, it will be minus 2 only. In fx, it will be minus 2 whole square upon minus 2. 4 upon minus 2. Again, it is same, no problem. Okay, sir. Yes, I think Davis was giving the answer. So it can't be 0, right, in the first list, the domain. करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है. नॉट आइडेंटिकल हैं, लेकिन रीजन अलग है. f का डोमेन है r माइनस 0 और g का डोमेन है r. ये रीजन है. ये जो मैंने df लिखा है, इसका मतलब डोमेन ऑफ f, dg मतलब डोमेन ऑफ g. अरे बड़ी सिंपल सी बात है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, राइट? तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स जो है, उसमें एक्स को जीरो रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी. लेकिन क्या हम जी एक्स में जीरो नहीं रख सकते? जी एक्स में जीरो रख सकते हैं. ओके, सो डोमेन इज द रीजन. पहले पॉइंट पे ही गड़बड़ हो गया. ओके, नाउ वी राइट द सेकंड एग्जांपल. सोच कर आंसर दीजिए. के log बेस ई एक्स स्क्वायर एंड 2 log x बेस ई. नाउ व्हाट इज द आंसर? क्या ये दोनों इक्वल हैं? आर दे आइडेंटिकल? Yes, sir. Yes, sir. They are identical. Anyone else with some other answer with reason? अगर मैं इसमें नॉन आइडेंटिकल में टिक लगा दूं तो कौन आंसर देगा मुझे? तुम कहोगे सर यही तो होता है, 2 सामने आ जाता है ना पावर में से. आई एग्री, बट नॉट ऑलवेज. एफ का डोमेन पता है क्या है? आर माइनस 0 एंड डोमेन ऑफ जी इज आर प्लस. बोथ आर डिफरेंट. देखो ये जो log एक्स स्क्वायर है ना, इसमें तुम x को प्लस भी रख सकते हो, माइनस भी रख सकते हो, क्योंकि स्क्वायर उसको प्लस ही कर देगा. लेकिन ज़ीरो नहीं रख सकते. log 0 इज़ नॉट डिफाइंड. लेकिन gx में तो और भी प्रॉब्लम है. gx में आप x में नेगेटिव भी नहीं रख सकते. तो ये जो जितने भी रिजल्ट पढ़े ना तुमने, log m टू द पावर n इज n log m, मैंने उसके साथ कुछ कंडीशंस भी तो लिखवाई थी. वो कंडीशन वैलिड होंगी तभी होगा, हमेशा थोड़ा ना इक्वल होता है. दैट इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों को. So, चलो. but we Yes. have a negative number. Which So one? In which one? fx or gx? in gx. So Yeah, so then, it is not. so then after writing the negative number in the second step, we can square it, right? No, that is what I am saying. When we can do that? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन ये है कि इसको ऐसे कब लिख सकते हैं? यू आर सेइंग आई विल टेक 2 देयर, राइट? बट बिफोर दैट तो log तो आप माइनस यहाँ पे 2 रख ही नहीं सकते ना. यू कैनॉट आर्ग्यू दैट सर आई विल टेक 2 हियर एंड इट विल बिकम 4. But at the very first step, this is not possible. This is not allowed to put here, right? So that is the question. When these two are equal, तो ये जो प्रॉपर्टी होती थी ना, log m to the power n is equal to n log m. If you will revise and check your logarithm notes, you will see that I have clearly mentioned m is positive, a is positive, a not equal to 1. अब वो कोई याद ही नहीं रखता है, तो फिर then confusion starts. So are they always equal? No, because their domains are not same. तो ये वाले में क्या होगा ना, m पॉजिटिव वाले में उनका डोमेन सेम हो जाएगा, देन इट विल बी ट्रू. अंडरस्टूड? Yes, sir. क्योंकि ये जो तुम्हारे पास gx है, राइट, 2 log x, तुम ये बोल रहे हो कि सर 2 पावर में चला जाएगा, वो तो fx है ना. तो फिर ये दोनों इक्वल कब है? फॉर दैट आई हैव टोल्ड यू व्हेन x विल बी पॉजिटिव. अगर ये x पॉजिटिव दे दे तुमको सवाल में, तब फिर तुम इसको ऐसे लिख दोगे, देन इट इज फाइन. तो वही तो दिख रहा है, डी एफ का और डी जी का डोमेन देखो, मतलब एफ और जी का डोमेन देखो. एफ और जी के डोमेन में सेम कौन सा है? आर प्लस सेम है.
बाकी तो उसका डोमेन अलग है और इसका डोमेन अलग है, ठीक है, क्योंकि डी एफ में नेगेटिव भी तो आ रहे हैं, जो तुम एफ एक्स में रख सकते हो -2 रख लो, स्क्वायर 4 कर देगा उसको, ये समझना। और देखो एग्जाम्पल अभी और क्लियर होगा। ये बताओ, बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है इज x इक्वल टू 1/1/x, यू हैव टू गिव द आंसर। आंसर इज वंस अगेन नो। क्यों? f का डोमेन तो r है, बिकॉज इट इज अ पॉलिनोमियल, यू कैन पुट एनीथिंग, लेकिन डी जी में 0 गायब हो जाएगा, राइट, यू कैन नॉट पुट 0 इन डिनोमिनेटर, तो 1/1/0 वहाँ गड़बड़ हो जाएगी, सो दे आर नॉट इक्वल। अब कुछ को लगेगा कि अच्छा हमेशा नॉट इक्वल ही आता है, ऐसा तो कुछ है नहीं। अगर हमेशा नॉट आइडेंटिकल ही आता फिर आइडेंटिकल की टेबल क्यों बना रखी है, करेक्ट? तो देखना पड़ेगा। देखो अभी कंफ्यूज हो गए फिर से, एक तो ये है और एक ये है, ये इसका आंसर दो, फोर्थ का और फिफ्थ का। Yes, what about the fourth answer? चलो मैं ऐसे टिक लगा देता हूँ, कैन एनीवन एक्सप्लेन? जो मैंने टिक लगाए कोई एक्सप्लेन कर सकता है? So for the fourth one, 1 plus tan square x, the value will always be equal to sec square x because of the identity. Because of the identity, then fifth one is not identity. फिफ्थ भी तो वही बात लिखी हुई है। If I want to ask you sec square x minus tan square x is equal to 1, this is not an identity. tan square x को उधर ले जाओ, क्यों? बट टिक तो कुछ और ही बोल रहे। Who will explain this? So the graph won't be the same. Graph won't be the same. Which one? For fifth one? Yeah. What is the reason why graph won't be the same? How you come to know this? So you So put tan at 90 degrees. So tan at 90 degree is not defined, correct? देखो भाई, पहले फोर्थ वाला तो आइडेंटिकल इसलिए है क्योंकि इनका डोमेन भी सेम है, और रेंज सेम क्यों है? क्योंकि आइडेंटिटी है। डोमेन सेम क्यों है? इसमें 90 नहीं रख सकते, तो 90 यहाँ भी तो नहीं रख सकते। तो जो 10 का डोमेन होता है ना, वही सेक का डोमेन होता है, अगर याद करो तो r-2n+1π/2, सो दैट मीन डोमेन्स आर सेम। अब रेंज सेम क्यों है? वैल्यू रख लो ना कोई, जैसे 30 डिग्री रखी, 30 डिग्री रखने पर सेक स्क्वायर 30 डिग्री या 60 रख लो, चलो थोड़ा इजी वैल्यू है। सेक स्क्वायर 60 की वैल्यू आएगी 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर 60 डिग्री रखोगे तो 1 + √3 का स्क्वायर 4, तो सेम वैल्यू आ रही है, मतलब रेंज सेम आती रहेगी, और आइडेंटिटी भी है कि बराबर होता है। दूसरी बात, सेम एक्स पर सेम वाई आएगा, इसका मतलब ग्राफ भी सेम होगा, क्योंकि जो एक्स मैं यहाँ रख रहा हूँ वही एक्स मैं यहाँ रख रहा हूँ, दोनों पर जो इनकी वैल्यूज़ हैं वो सेम आ रही हैं, इसका मतलब ग्राफ ओवरलैप करेगा। तो मतलब आइडेंटिकल होने के लिए सारी कंडीशन वैलिड है। लेकिन फिफ्थ वाले में क्या हो रहा है? हु कैन एक्सप्लेन द फिफ्थ वन? फिर ये भी तो वही चीज़ दिख रही है लगने, मतलब लिखने में वैसा ही दिख रहा है, पर नॉट आइडेंटिकल क्यों है? क्योंकि उसका रीज़न है डोमेन। ये तो भाई डोमेन है एफ का 2n+1π/2, वेर n बिलोंग्स टू z, और कोई बोले जी का डोमेन क्या है, तो जी का डोमेन है r। भाई तुम्हारे पास एक तो फंक्शन ये है ना,
और एक तुम्हारे पास फंक्शन है ये, तो नीचे वाला तो कांस्टेंट फंक्शन है जिसका पॉलिनोम मैंने बताया था, कांस्टेंट फंक्शन मतलब पॉलिनोमियल, तो डोमेन आर। और ये वाला जो फंक्शन है इसका डोमेन निकालने के लिए इन दोनों का निकाल के बीच में माइनस है तो इंटरसेक्शन, पर क्योंकि दोनों का डोमेन सेम होता है तो यही आंसर हो जाता है। तो एफ एक्स में आप 90 डिग्री नहीं रख सकते, यहाँ पे 90 डिग्री रख सकते हो, कुछ भी रख लो, कांस्टेंट है, वन ही आएगा। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो थोड़ा सा इधर उधर करने से भी क्वेश्चन जो है घूम जाएगा। दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अभी देखो और इसमें कन्फ्यूजन कैसे होगा। एक तो ये है कि साइन एक्स 1/cosec x के बराबर होता है क्या, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या cosec x 1/sin x के बराबर होता है। अब इसमें क्या आंसर आएंगे बताओ। Yes, who will tell me? सर नॉट आइडेंटिकल। सिक्स्थ वाला नॉट आइडेंटिकल कह रहे हो, रीजन क्या है? आंसर तो सही है। सर cosec 90 get 0 at the denominator. नो 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 नो, cosec 90 is 1। और कोई सोचो क्या रीजन है। So we can't put x as 0. यस, तो सिक्स्थ वाले में डोमेन की प्रॉब्लम है। एफ का डोमेन तो आर है, साइन एक्स का डोमेन आर होता है, लेकिन ये जो जी है फंक्शन उसमें कॉसेक नीचे आ रहा है वैसे, है ना, लेकिन कॉसेक आ रहा है नीचे है, पर कॉसेक की वैल्यू जीरो नहीं होती है कभी। कॉसेक की वैल्यू, अगर कॉसेक की रेंज याद हो तुम्हें, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी होता है। मतलब कॉसेक तो जीरो होता ही नहीं है कभी, तो कोई बोलेगा सर कॉसेक जीरो हो जाए तो, लेकिन कॉसेक खुद कहाँ पर अनडिफाइंड होता है? एन पाई पर। इस वजह से तो एक का डोमेन है क्या, आर, मतलब कुछ भी रख सकते हैं, और कॉसेक में आप क्या क्या नहीं रख सकते, 0 पाई 2 पाई इस तरह से। इस वजह से अब कोई बोलेगा सर पर हमने तो ये पढ़ा है कि साइन एक्स इज इक्वल टू 1/cosec x होता है। कुछ लोग ये आर्ग्यू करेंगे कि साइन एक्स इज इक्वल टू 1/cosec x होता है। बिल्कुल होता है, पर हमेशा थोड़ी ना। कहाँ कहाँ पर? अभी बोलो सर साइन 45 निकाला था और 1/cosec 45 निकाला था, सेम आ रहा है। सर 60 भी निकाला तब भी सेम आ रहा है, फिर क्यों नहीं है आइडेंटिकल? तो मैं उससे कहूँगा कि ज़रा ज़ीरो रख लो, ज़ीरो रख लो। तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे? नहीं। साइन जीरो की वैल्यू जीरो, 1/cosec जीरो, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। हर पास जीरो रख ही नहीं सकते cosec में, दैट इज द थिंग। अब सेवेंथ पे आ जाओ, सेवेंथ का क्या आंसर है? यस, हु विल टेल? So it's identical. यस, अब इसमें तो सारा कुछ सेटिस्फाई हो रहा है। तुम बोलोगे सर हम cosec में जो है ज़ीरो नहीं रख सकते। अच्छी बात है, अब तो तुम इसमें भी नहीं रख सकते ना। तुम इसमें ज़ीरो कैसे रख दोगे? क्योंकि साइन ज़ीरो ज़ीरो होते ये भी तो गड़बड़ कर देगा। तो अब वो वाली बात कि cosec साइन का उल्टा होता है वो ठीक हो जाएगी, और सेम एक्स पे सेम वाई आएगा, मतलब ग्राफ भी सेम हो जाएगा। तो बस यही ऐसे ही आर्ग्यू करोगे खुद से, तब समझ में आएंगी चीज़ें, वरना हर चीज़ सेम लगेगी। देखने में तो ऐसा लगेगा ये सब तो वही तो चीज़ें ना हमने बचपन से पढ़ी हैं, तो सारे आइडेंटिकल ही लग रहे हैं, तो बस हो गया काम ये।
इनके क्या आंसर है भाई, पहले दो के? रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एक्स, और 9th है रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। कौन देगा इनके आंसर? Identical, the root x square is equal to mod x. बिल्कुल, ये तो मैंने आपको पढ़ाया ही हुआ है। मैंने आपको ये 11th क्लास में एटलीस्ट 20 to 30 टाइम रिपीट किया होगा कि रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एक्स होता है। तो 9th का आंसर नॉट आइडेंटिकल होगा। इसका रीजन क्या है, कौन बताएगा इसका रीजन कि रूट एक्स स्क्वायर को एक्स क्यों नहीं लिख लेते सिंपली? So you Who can't will put tell? it. Sir, Why? What is the reason? Is it because of domain? Yes, so the domain cannot be negative. तो डोमेन नेगेटिव किस में आ रहा है आप बताओ यहाँ पे? 9th वाले में डोमेन किस में नेगेटिव, मतलब So कौन सा f of ऐसा है 9th वाला जिसमें आप x को नेगेटिव नहीं रख सकते? टेल में। So f of x. एफ ऑफ एक्स में यू कैन नॉट, नो वेट अ मिनट, एफ ऑफ एक्स में आप नेगेटिव नहीं रख सकते। किसने मना किया? क्या रखवाना चाहते हो? लो -2 रख के दिखा दूँ, ये लो। व्हाट इज द प्रॉब्लम? ये तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई। अब what do you think? Why we say that root x square is mod x but root x square is not equal to x? So graphs are not the same. Graphs and graphs are not same because of the range. कैसे देखो भाई, f का रेंज 0 to infinity, g का रेंज r। ये क्या हुआ? वी हैव डिस्कस दिस सो मैनी टाइम्स। देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि y इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर, तो ये जो रूट है, दिस वी हैव डिस्कस सो मैनी टाइम्स दैट इट गिव्स अ नॉन नेगेटिव नंबर। रूट की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती। रूट 25 5, रूट 16 4, रूट 0 0, नेगेटिव नहीं आता कभी भी, ठीक है। लेकिन ये जो y, अगर मैं आपसे बोलूं कि y इज इक्वल टू एक्स, इसमें x नेगेटिव रखोगे तो y नेगेटिव आ जाएगा, समझ रहे हो? x को पॉजिटिव रखोगे तो y पॉजिटिव आ जाएगा, x को 0 रखोगे y 0 आ जाएगा। यानी रेंज g की रेंज तो r है, लेकिन रूट एक्स स्क्वायर की रेंज सिर्फ 0 to इन्फिनिटी है। तभी तो 8th वाला ट्रू हो जाता है, क्योंकि 8th वाले में अब gx में मॉड लगा हुआ है, तो उसमें अब रेंज नेगेटिव नहीं आएगी, उसमें भी अब जो रेंज है वो 0 से इन्फिनिटी ही आएगी। इसीलिए 8th करेक्ट है, 9th रॉन्ग है। सो रेंज इज़ द रीज़न। और पहले आप डोमेन देखा करो, फिर रेंज देखो, और फिर ग्राफ पे जाओ। ग्राफ इज़ द लास्ट थिंग टू डू, है ना। और उसके तो आपको एग्जाम्पल भी बहुत कम मिलेंगे, एक तो मैं भी लिख के भी दिखाऊंगा आपको। बट बिफोर दैट लेट अस सॉल्व 10th वन। ये बोल रहे हैं कि a की पावर 1/x और x रूट ऑफ a, क्या ये एक ही बात है या अलग अलग बात है? दोनों में a पर कंडीशन सेम लगा दी उन्होंने। एंड 11th है sin x एंड cos x। इन दो का आंसर दे तो हो जाएगा, इतने एग्जाम्पल बहुत है। So in the 10th one, domain of A cannot be negative for the g of x. अच्छा, सही जा रहे हो, लेकिन और एक्यूरेट करना होगा। इसमें जो f का डोमेन है दैट इज़ r-0, क्योंकि इसमें जो x है ना वो अपॉन में आ रहा है, ठीक है, 1/x, तो 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। लेकिन सॉरी, rf नहीं df डोमेन। लेकिन मुझे इसका डोमेन कौन बताएगा? g का डोमेन। हु विल टेल मी द डोमेन ऑफ gx, x रूट ऑफ a? एग्जैक्ट डोमेन कोई बता सकता है? ये x रूट ऑफ a है ऐसे करके, इसमें x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? हु कैन टेल मी व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x दैट यू कैन पुट? So even only even number? You have never heard Positive about number. so sorry. positive? So,
देखो कुछ ने बोला इवन, तो मेरा उनसे क्वेश्चन ये है कि थर्ड रूट ऑफ ए नहीं सुना आपने, बहुत बार सुना होगा। अब कुछ ने बोला पॉजिटिव, सो प्लीज रीड दिस, ये क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ के जरा मुझे बता दो कि ये लिखा हुआ है सर ये। जैसे मैं पढ़ के दिखाऊं, स्क्वायर रूट ऑफ ए, थर्ड रूट ऑफ ए, फोर्थ रूट ऑफ ए, फिफ्थ रूट ऑफ ए, प्लीज रीड दिस, इसको पढ़ के बताइए क्या लिख रहा है ये। Will you say something like this, 3.1th root of a? Have you ever heard this kind of term? Because it does not exist. तो ये जो साइन होता है ना, ये जो साइन होता है मतलब ये सिंबल जो होता है रूट वाला, ये हमेशा वैलिड नहीं होता। ये पता है कब होता है, x बिलोंग्स टू 3, 4, 5 ऐसे। इट एग्जिस्ट फॉर ऑल नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1, ऐसे भी बोल सकते थे, n-1 करके भी लिख सकते थे चीज़, या फिर 2, 3, 4, 5, बस डेसिमल वगैरह नहीं फिट होते हैं इसमें। तो आप देख सकते हो डोमेन तो बिल्कुल डिफरेंट ही है। लेकिन आप बोलोगे सर हमने तो कई बार लिखा है ऐसे, आपने लिखा होगा, आपने ये लिखा होगा, ठीक है, आपने ऐसे लिखा होगा तो सही बात है, यहाँ पे तो है ही बराबर। अगर आप दोनों का डोमेन चेक करोगे तो एफ के डोमेन में 0 के अलावा सब कुछ आ रहा है, और डी जी में चेक करोगे तो 2, 3, 4, 5 आ रहे हैं। तो अगर मैं डी एफ और डी जी का इंटरसेक्शन बोलूँ कि डी एफ और डी जी का इंटरसेक्शन क्या है, तो वो 2, 3, 4, 5 ही होगा। तभी तो ये आपने देखे हैं, ये कॉमन डोमेन में इक्वल दिखते हैं आपको, लेकिन जनरली क्या ये बराबर होते हैं, नहीं होते हैं। अभी अगर मैं बोलूँ कि सर मैंने फिर ना बाद में इसी को देख के ऐसे लिख दिया था, देन आई विल से इट इज़ रॉन्ग। यहाँ ये तो ठीक है, लेकिन ये लिखना गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सिंबल है इट इज़ डिफाइंड फॉर ऑल नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, ध्यान रखिएगा। तो 10th वाला इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादातर तो आप देखो डोमेन पर ही गड़बड़ कर जाते हैं। एक ये 9th वाला जरूर रेंज तक पहुंच गया, मतलब पहली वाली उसने लेवल क्रॉस कर ली, दूसरे पे अटक गया। अब ये लास्ट वाला एग्जांपल साइन और कॉस, इसका क्या है? Sir, could you please zoom in? या इज इट विजिबल नाउ? Sir, a little bit more. Yes, sir. Thank you, sir. ऑलराइट, 11th का आंसर क्या है, वही रीजन क्या है, जो कुछ भी है क्या आंसर है? So not identical. एंड व्हाट इज द रीजन? So the graphs will not overlap. यस, दिस इज वन ऑफ द फ्यू एग्जाम्पल, दूसरा तो मुझे भी नहीं मिला आज तक कभी, तुम्हें मिल जाए तो मुझे बताना। इसमें रीज़न एक ही बात है कि ग्राफ्स आर नॉट सेम, क्योंकि देखो क्या इसके डोमेन सेम है? यस, साइन एक्स का डोमेन आर होता है, कॉस एक्स का डोमेन आर होता है। सेकंड, क्या इनकी रेंज सेम है? यस, साइन एक्स का रेंज -1 to 1 क्लोज, कॉस का रेंज भी -1 to 1 क्लोज। क्या इनका ग्राफ सेम है? नो। ग्राफ सेम क्यों नहीं आता? ग्राफ सेम इसलिए नहीं आता है क्योंकि वो ओवरलैपिंग नहीं है। ओवरलैपिंग क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मान लो मैं x = 30 डिग्री रखूँ तो इस पे जो y आएगा और इस पे जो y आएगा वो डिफरेंट आएंगे। तो अगर किसी x पे सेम y आते तभी तो ओवरलैप करेगा, डिफरेंट y आ रहा है मतलब डिफरेंट हाइट आ रहा है, तो ओवरलैप कैसे करेगा? सो दिस इज वन एग्जाम्पल where you will see that the two functions are not identical because their graphs are not same. रेस्ट तो मैक्सिमम डोमेन और रेंज पे ही ओवर हो जाते हैं, ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना। सो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट आइडेंटिकल फंक्शन, क्योंकि वो 3 चीज़ें हैं, उनका ध्यान रखोगे तो हो जाएगा सवाल, वरना तो घूमते रहो फिर उसमें। जस्ट वेट।
Okay, before we proceed further, we actually have 2 DPPs to discuss, है ना? So पहले एक बार उसको कर लेते हैं, वरना वो फिर हमेशा पेंडिंग रह जाती है DPP. DPP 8 सभी लोग रेडी रखिए. देखिए DPP 8 में क्वेश्चन 1. So you didn't finish DPP 7. 7? Yes, sir. 7, I think 2-3 questions are left, not all, right? Yes, sir. 7th में 3 questions are left. I will discuss Sure, them sir. also. That I will solve, don't worry. आज फिर यही सब हो पाएगा. DPP only will be happening. Anyways, before that DPP 8, I will finish 8 and 9 first. DPP 8 में question 1, any part that you have as doubt. Question 1. In any part if you have doubt. देखिए इसमें जो फर्स्ट है that is none. सेकंड का आंसर क्या आ रहा है? Who will tell? सेकंड पार्ट x into a to the power x minus x plus 1 upon ये वाला. This will come even. Third is class example odd. Fourth is even. फिफ्थ odd आ जाएगा. सिक्स्थ वाला, sixth will be, I think it will be even. तो ये क्वेश्चन 1 की जो 6 पार्ट्स हैं जिसके मैंने आंसर लिख दिए. डू यू हैव डाउट इन एनी ऑफ द पार्ट्स? आस्क मी एक्सेप्ट क्लास एग्जाम्पल. थर्ड वाज क्लास एग्जाम्पल, थर्ड पार्ट. पहले 6 पार्ट्स में किसी में भी डाउट है, लेट मी नो. Question 2 is class example. Question 3 is theory. This I have proved also. Question 3 में मैं ये बता चुका हूँ. इनफैक्ट question 4 also theory. कितनी easy है DPP. Third and fourth we have discussed in properties. So tell me which other question, now from 5 to 10, which question you want to ask? Yes, anyone? No doubts? So 9 and 10. Wait a minute. So even 8th one. Ask why are you waiting? देखो जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है ना, इफ fx is even as well as odd, prove that fx equals 0. तो ये तो वैसे भी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, प्रॉपर्टी है. वैसे इसको प्रूव कैसे करेंगे? कोई बोले कि हाउ टू प्रूव. क्वेश्चन 5. सो fx is even. fx is even का मतलब f of minus x is equal to fx and fx is odd also. इसका मतलब f of minus x is equal to minus fx. ठीक है, ये तो कंडीशन होती हैं. अब 1 और 2 से क्या देख रहे हो? 1 और 2 से तुम्हें पता चलेगा फ्रॉम 1 and 2 दोनों से f of minus x की वैल्यू बराबर कर दो ऐसे.
ये, फिर उसको शिफ्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। काट मत देना, 1 इज इक्वल टू -1 प्रूव मत कर देना। सो ट्वाइस ऑफ एफ एक्स, यू ब्रिंग माइनस एफ एक्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, सो 2f(x) इक्वल 0, इसका मतलब f(x) बराबर 0, ये प्रूव हो गया। ऐसे प्रूव करते हैं, ठीक है। सिक्स्थ वाला तो और भी आसान है, देखो सिक्स्थ में क्या प्रूव करना है? So what is the test? The next test. It will be just what has been taught. Say next test, you know, it will be subjective. Okay, it will be subjective test, and Yes, that sir. will be given to you on Teams. Okay, that will be Yes. given to you on Teams, and then you will write the answers and send it on Teams only. So it will be informed how you have to give the answers. Okay, but it will not be objective, it will be subjective. Fine. Yes, sir. ऑलराइट, तो सिलेबस तो यूजुअली ये मान के चला करो यार, जहाँ तक पढ़ा दिया वहाँ तक। नाउ इफ यू हैव टेस्ट ऑन संडे, सी व्हाट विल हैपन टिल इट इज ऑनलाइन, ओके, योर टेस्ट विल बी ऑन संडे, मेनली संडे ओनली, राइट? सो दैट मीन्स वॉट एवर, एंड फ्राइडे यू डोंट हैव क्लासेस, Friday you don't have classes because of this language classes, right? And obviously if I am taking test on Sunday, so I won't be asking anything which will be taught on Saturday. Okay, so from now onwards, whenever there will be test on Sunday, whatever I will teach you till Thursday, that will be asked in your test, whether it is objective or subjective. Fine. Yes, sir. All right, so question number 6. If f(x) is odd, then prove that f(0) is equal to 0. ये तो बड़े सिंपल क्वेश्चन थे। गिवन f(x) is odd, f(x) odd है, इसका मतलब f of -x is equal to -fx, ठीक है। अब उन्होंने ये बोला है कि इससे प्रूव करो कि f(0) is 0, so you put x equal to 0 in this equation. ऐसे होता है सब। तो ये मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये x को पुट करने वाली बात भी आप थोड़ा सा समझने लग जाओ। When you put x equal to 0, तो f of -0 चलो लिख देते हैं एक बार, हालांकि आप जानते हो कि there is nothing called -0, right? 0 is नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव। ये लो आंसर आ गया, फिर कैंसिल तो कर मत देना, उसकी जगह इसको ट्रांसपोज करोगे ऐसे करके। सो 2 टाइम्स ऑफ समथिंग इज 0, दैट मीन्स दैट वैल्यू विल बी 0। ये करना था आपको। फिर मैंने ये सारी बेसिकली आइडेंटिटीज प्रूव करवा रहे हैं आपसे। 7th में क्या प्रूव करवा रहे हैं कि डेरिवेटिव ऑफ ऑड फंक्शन इज इवन एंड डेरिवेटिव ऑफ इवन फंक्शन इज ऑड। ये भी बहुत आसान है, ये देखो, इसमें थोड़ा चेन रूल यूज होगा। इफ f(x) इज इवन, इसका मतलब f of -x इज इक्वल टू f(x), यही तो होता है। अब इसमें क्या है ना, डिफरेंशिएशन करेंगे और उसमें चेन रूल यूज होगा थोड़ा सा। तो देखिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड, पहले मैंने आपको ये समझाया था विद एग्जांपल। अभी भी इसमें ज़्यादा अगर नहीं समझ में आया, इट इज़ फाइन, बिकॉज ये पर्टिकुलर क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में रिपीट होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ। अब डिफरेंशिएट करने के लिए चेन रूल यूज़ होता है, जो थोड़ा बहुत मैंने आपको 11th में बताया था। इसमें पहले तो f का डिफरेंशिएशन होगा, उसके बाद -x का होगा, तो -x का डिफरेंशिएशन -1, फिर राइट साइड में पहले f का डिफरेंशिएशन होगा, फिर x का होगा, x का होगा 1। तो यहाँ से जो प्रूव हो गया, थोड़ा भी समझ में आया ये पर्टिकुलर, तो इट इज़ फाइन, नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज दिस थिंग विल इज रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन, सो इट विल कम वंस अगेन। ये लो, अगर आप यहाँ से देखोगे इस रिजल्ट को, तो इस रिजल्ट से ये प्रूव हो गया कि f(x) इज ऑड। क्यों? क्योंकि जैसे f एक फंक्शन है, g एक फंक्शन है, h एक फंक्शन है, f' भी एक फंक्शन है। तो ये रिजल्ट क्या कह रहा है? रिजल्ट कह रहा है कि f' ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ f'(x). ये कुछ ऐसी बात नहीं है जैसे g ऑफ -x इज इक्वल टू -gx। तो इसको देख के क्या बोलोगे? इसको देख के बोलोगे कि gx अपना ऑड फंक्शन है। तो ये वही तो हो रहा है, जैसे g फंक्शन होता है, f फंक्शन होता है, ऐसे f' फंक्शन है। तो f' में जब मैं -x रख रहा हूँ,
तो वो उसी के नेगेटिव के बराबर आ जाता है, माइनस ऑफ एफ डैश एक्स। इसका मतलब एफ डैश एक्स कैसा होगा, ऑड, और एफ एक्स कैसा था, इवन। इसका मतलब इवन फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, ऑड होता है। ऐसे जब ऑड वाला यूज करोगे तो वो इवन आ जाएगा, वाइस वर्सा ऐसे। सो बेसिकली डिफरेंशिएशन इज डन, और उसके लिए ये वाला जो स्टेप है दैट इज मेन, वो चेन रूल होता है, ठीक है। थोड़ा भी समझ में आया तो इट इज ओके। बाकी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल अगेन कम इन डिफरेंशिएशन, क्योंकि डेरिवेटिव से रिलेटेड बात है। नाउ आई विल सॉल्व नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस, 8, 9 एंड 10। 8 तो बहुत ही बढ़िया सवाल है, 9th और 10th एक जैसे हैं, पहले उनको करेंगे देन विल सॉल्व इट। लेकिन 9th क्वेश्चन में आपको दे रखा है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। सी दीज आर द क्वेश्चंस विच यू नीड टू रिपीट। इनको बार बार करके देखो, इनको ऐसा मत करो साइड में रख दिया पता चलो। जस्ट अ मिनट। ओके सो ये क्या है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर ऑल रियल एक्स एंड वाई, और एफ जीरो की वैल्यू जीरो नहीं है। ओके सो एक नेचुरल क्वेश्चन आता है कि क्या है, वी विल सी हाउ विल गेट दिस। अच्छा क्वेश्चन है, 8, 9, 10, 10 आर गुड क्वेश्चंस, एंड वी हैव टू प्रूव कि जो फंक्शन है कैपिटल एफ एक्स और स्मॉल एफ एक्स, ध्यान रखना है ना, और ये है ये एफ एक्स का होल स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है कि कैपिटल एफ एक्स एक इवन फंक्शन आएगा। तो भाई अगर आपको कैपिटल एफ एक्स को इवन फंक्शन प्रूव करना है तो आपको बेसिकली दिखाना होगा कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स सेम है। अब समझना ध्यान से सवाल को, मैं क्या करूँगा, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालूँ। एफ ऑफ माइनस एक्स का मतलब ये है कि मैं इस पूरे जगह पर हर जगह एक्स की जगह माइनस एक्स रख दूँगा, ये रख दिया मैंने, रख दिया। लेकिन अब सवाल ये होगा अब क्या करूँ, कैसे दिखाऊं कि एफ कैपिटल एफ एक्स और कैपिटल एफ माइनस एक्स दोनों इक्वल हैं, क्योंकि मेरे पास एफ माइनस एक्स आ रहा है। उसके लिए मुझे इस रिलेशन की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। ये सवाल अच्छा है, सुनते जाओ ध्यान से। तो मुझे क्योंकि माइनस एक्स चाहिए ना, तो मैं सबसे पहले काम कर रहा हूँ, मैं वाई की जगह माइनस एक्स रख रहा हूँ। ये सब्सटीट्यूशन वगैरह थोड़े सा सीखने पड़ेंगे आपको धीमे धीमे, है ना। एक टॉपिक भी है फंक्शनल इक्वेशन, उसमें भी मैं इस तरह के कई बार इसमें चेंजेस करूँगा, सब्सटीट्यूशन करूंगा। तो मतलब मैंने y को माइनस एक्स रखा, y को माइनस एक्स रखने पर कुछ रिजल्ट ऐसा बन गया, क्योंकि लेफ्ट साइड में बन जाएगा, जब y को माइनस एक्स रखोगे तो x माइनस एक्स जीरो, इधर एफ एक्स इंटू एफ माइनस एक्स। एफ माइनस एक्स और एफ एक्स में रिलेशन आ जाता है, लेकिन अब प्रॉब्लम कर रहा है एफ ज़ीरो, और एफ ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो नहीं है। ओके आई एम रिपीटिंग अगेन, यू विल हैव टू रिपीट दीज क्वेश्चंस 2-3 टाइम्स, फिर थोड़ा सा धीमे धीमे समझ में आएंगे। नेक्स्ट थिंग, पुट एक्स एंड वाई इज ज़ीरो। इसे करने से क्या होगा, इसे रखने से आपके पास एफ ज़ीरो की वैल्यू आएगी। अब देखो मैंने आपको बोला है कि हम यूजुअली दोनों तरफ से प्रोडक्ट फॉर्म में कैंसिल नहीं करते हैं, पर यहाँ पर हम कर सकते हैं। वाई, बिकॉज एफ ज़ीरो इज़ नॉट ज़ीरो। तो इसका मतलब इस फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो पे ज़ीरो नहीं है, मतलब हम कैंसिल कर सकते हैं, नॉन ज़ीरो टर्म कैंसिल करते हैं दोनों तरफ से, और इसीलिए एफ ज़ीरो की वैल्यू 1 आ जाती है। इस एफ ज़ीरो की वैल्यू 1 को हम यहाँ पर यूज़ करें अगर, तो मेरे पास एफ ऑफ माइनस एक्स का फंक्शन आ जाता है। मतलब मुझे क्या पता चल जाता है कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स में क्या रिलेशन है। उस रिलेशन को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, जिसके लिए मैं पूरा सवाल इतनी देर से कर रहा हूँ। तो एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह तो हो गया 1 अपॉन एफ एक्स, और यहाँ पर इसका स्क्वायर है तो 1 अपॉन एफ एक्स का स्क्वायर, ऐसे। और आप देखेंगे कि फंक्शन सेम आ जाएगा।
इसका मतलब ये इवन बन जाएगा क्योंकि अब तो बस एलसीएम लेना रह गया है। सो दिस विल बी, पहले तो एलसीएम लोगे और ये ऊपर भी जाएगा। लोग एलसीएम में भी गलती करते हैं आज अभी तक। अब 12th में भी गलती करोगे एलसीएम में? कुछ खुद लिख के देखा करो। सम स्टेप्स यू शुड राइट ऑन योर ओन। ये हुआ, ये कैंसिल कर देंगे इससे, तो ये वही नहीं आ गया जो लिखा हुआ है, देख लो आप। ये एफ एक्स अपॉन एफ एक्स का स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एफ एक्स होल स्क्वायर, एक ही बात है। एंड दिस इज नथिंग बट योर कैपिटल एफ एक्स, दिस इज योर कैपिटल एफ एक्स। सो what we have proved that the function capital fx is even, जो कि हमें प्रूव करना था इसमें, यहाँ से यहाँ तक। दिस रिजल्ट f of minus x is equal to fx, तो हमें प्रूव करना था कि ये इवन है, जो अब प्रूव हो चुका है। सो देर आर सो मैनी थिंग्स। देखिए ये वाला पार्ट तो सभी कर लेंगे कि x को माइनस एक्स से बदला, लेकिन उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि फंक्शन को सेम दिखाने के लिए, मतलब f ऑफ माइनस एक्स को एफ एक्स के बराबर दिखाने के लिए या ऑपोजिट साइन का दिखाने के लिए आपको f ऑफ माइनस एक्स को एफ एक्स के टर्म में चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास ये जो दो रिजल्ट आप देख रहे हो, ये हमने पुट करके इन दोनों की हेल्प से निकाला है f ऑफ माइनस एक्स और 1 अपॉन एफ एक्स में, मतलब रिलेशन, और उसको हमने यूज़ करके दिखाया है कि फंक्शन इवन है। नाउ दीज आर एक्चुअली वेरी गुड क्वेश्चंस, जिनको आप 3-4 बार करोगे ना तब फिर आपको जो है माइंड में आएंगे। एंड रिगार्डिंग दीज सब्स्टिट्यूशंस दे वेरी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सवाल को देख के समझना पड़ता है। सो देर इज़ वन आर्टिकल कॉल्ड फंक्शनल इक्वेशन which is the end of the chapter, so at that time we will see these type of questions in plenty. I will solve like 8 to 10 questions at that time also, तो वहाँ से फिर से आपको थोड़ा सा और आइडिया आपका डेवलप होने लग जाएगा। अब जो मैंने इसमें किया है ना 9th में, मैं एक बार 10th में फिर से यही करूँगा, सो इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द थिंग्स। अब 10th वाला देखेंगे इसके बाद। सो क्वेश्चन नंबर 10 इसमें गिवन है आपको एफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स 2fx fy फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू R and f0 is not equal to 0, and we have to prove that function is even. To prove fx is even, that is to prove f of minus x is equal to fx, ये मुझे शो करना है, ठीक है। नाउ अच्छा, ये जो मैंने आपको पहले ही बताया, जो इन्वर्टेड ए होता है इसका मतलब फॉर ऑल या सच दैट होता है। ये फॉर ऑल भी पढ़ते हैं, सच दैट भी पढ़ सकते हैं। सच दैट एक्स एंड वाई आर रियल नंबर, दे बिलोंग्स टू आर, मतलब माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, दे कैन बी एनी। So can you tell me, in order to prove that f of minus x is equal to fx, can anyone tell me how to use this equation, the given equation? अभी जो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें करवाई उसके बेसिस पे कैन यू स्टार्ट द क्वेश्चन एंड टेल मी हाउ टू यूज दिस गिवन इक्वेशन इन f। ये जो एफ एक्स प्लस वाई करके जो इक्वेशन दी हुई है इसको कैसे बढ़ाएं आगे? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू हियर? So we can put x and y. बिल्कुल, सबसे पहले यही काम करना है। अब एक चीज़ तो समझ गए, क्योंकि देखो f0 की वैल्यू 0 नहीं है, तो नेचुरली क्वेश्चन ये आएगा तो फिर क्या है? सो दैट कैन बी ऑब्टेन्ड व्हेन यू पुट बोथ एज 0। अब दोनों को 0 रख दोगे तो इधर f0
दिस इज ऑल्सो f0, दिस इज 2f0 f0, लेकिन यहाँ पर हो रही है एक प्रॉब्लम, नहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, आ जाएगा। दिस इज 2f0, दिस इज 2f0 इंटू f0। तो अभी अभी जो डिस्कशन चल रहा था कि f0 0 नहीं है, सो वी कैन कैंसिल, राइट। इससे तुम्हारे पास f0 की वैल्यू आ जाएगी, इससे तुम्हारे पास f0 की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो एक चीज़ तो निकाल ली, इसकी ज़रूरत बिल्कुल पड़ने वाली है। और क्या, व्हाट एल्स? बिकॉज वी हैव टू प्रूव f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। ये जो है ना, इसको ध्यान से इसको समझना है। इसमें क्या किया जाए? So you can put y is equal to x. विच वन है 0? रिपीट। So we can put y is equal to x. y इज इक्वल टू एक्स। देखो मैं बताता हूँ क्या होगा। मैंने पिछले वाले में y इज इक्वल टू एक्स रखा था, वहाँ पे वो चीज़ वर्क कर गई, करेक्ट। क्या यहाँ पे भी वर्क करेगी? नहीं करेगी, बिकॉज इफ आई पुट y एज x, if I put y as x, so what will happen? ये कुछ ऐसा बन जाएगा। लेकिन देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है, चलो f0 की वैल्यू भी रख दोगे 1, बट दिस विल गिव यू अ रिलेशन इन f2x एंड fx, correct? It will give you a relation in f2x and fx. It won't give you a relation in f of minus x and fx, correct? तो ये यहाँ पे तो काम बना नहीं। पहले y इज इक्वल टू एक्स रखने से कैसे बना, या y इज इक्वल टू माइनस एक्स रखने से? बिकॉज आई गॉट अ रिलेशन इन एफ एक्स एंड एफ ऑफ माइनस एक्स, सी दिस विच वर रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर तो ऐसी ज़रूरत नहीं है, तो y इज इक्वल टू एक्स तो काम करेगा नहीं यहाँ पे। नाउ व्हाट, और क्या कर सकते हैं? Put x is 0 and y is 1. You want to put x as 0 and y as 1? Instead you do one thing, ये क्या थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा, तो I don't expect you to give the answer, give the correct answer at once, that won't be happening immediately, okay? इसमें आप क्या करो, put x equal to 0, x को 0 रखो। देखो x को 0 रखोगे, this thing will be happening, अभी आएगा आंसर सर। x को 0 रखा हर जगह, ये बना, और f0 की वैल्यू क्या, 1। सो व्हाट यू विल गेट, f ऑफ y प्लस f ऑफ माइनस वाई, f0 की वैल्यू 1 है, सो 2f(y) हो जाएगा। ये लो आ गया आंसर, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, f ऑफ माइनस वाई इज इक्वल टू f ऑफ y, 2f(y) में से f(y) सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्वेश्चन आपका हो गया। नाउ पुट y इज इक्वल टू x, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सवाल y में या x में, पर फिर भी लिख लो, क्योंकि बेसिकली आपको ये दिखाना होता है कि मैं f में एक बार जो वैल्यू रखूं, f में एक बार जो वैल्यू रख रहे हैं और एक बार उसके नेगेटिव वैल्यू रख रहे हैं, अगर फंक्शन की वैल्यू सेम आ जाए तो इवन होता है। तो वैसे तो यहीं पे प्रूव हो गया था कि f इज इवन, बट क्योंकि आंसर x में चाहिए तो y की जगह x रख देंगे हम। सो व्हाट वी हैव डन इन दिस क्वेश्चन, एक बार तो हमने x0 y0 रखा, ये हम क्यों कर देते हैं, इससे हमारे पास f0 की वैल्यू आ जाती है, राइट। उसके बाद वाले थोड़े से जो है ना, ये सब्स्टिट्यूशन इस टाइप की, ये थोड़ा सा आपको जो है, मैंने जैसे आपसे कहा प्रैक्टिस से आएगा, तो वो तो मुझे पता था कि मुझे ही करवाने हैं आपको ये सवाल, ओके। बट नाउ दीज थिंग्स विल स्टार्ट गिविंग यू सम आइडिया फॉर सम क्वेश्चंस दैट यू विल बी डिस्कसिंग इन मे बी अपकमिंग DPPs और टेस्ट, राइट। इसके अलावा एक 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन बचता है इसमें। एट्थ क्वेश्चन क्या है, देखिए, ये भी अच्छा सवाल है। इसमें आपको प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ेंगी ढेर सारी। एफ एक्स इक्वल्स, आपको प्रूव करना है कि ऑड है और उसमें नीचे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है।
ये सवाल है ना, ये है, प्रूव करना है कि फंक्शन ऑड है। वो तो कर लेंगे, उससे पहले कोई स्टेप यहाँ पे समझ लो आप, क्योंकि बार बार पूरा सवाल नोट करना पड़ेगा। इस ब्रैकेट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ये है, इसको फिर पहले मैं स्प्लिट करके ऐसे लिखूंगा x/π+2, और क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, याद करो क्या बताया था, अगर इंटीजर प्लस या माइनस में तो बाहर आ जाएगा। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया आपको, पहले तो मैं इसका यूज़ करूँगा यहाँ पे। तो ये जो मैंने लिखा है साइड में, उसके अकॉर्डिंग मैं लिख के दिखा रहा हूँ इसको, x/π का बॉक्स +2 -3, और सिंप्लीफाई हो जाएगा। मतलब पहले तो मैं f(x) को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, उसके बाद निकालूंगा ये। अब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 बॉक्स x/π, और 2 × 2 4, 4 - 3 1। अभी तक तो मैंने ये सब करके सिर्फ f(x) को सिंप्लीफाई किया है, ताकि मैं इसको सॉल्व करने में मुझे आसानी रहे। ठीक है, अच्छा, अब हम बनाएंगे यहाँ पर क्या, मुझे और प्रूव करना है, तो अब वो चीज़ आ जाएगी f(-x) वाली, है ना, f(-x) वाली आ जाएगी। तो ये देखो, x को -x से बदला, sin of -x, tan of -x, हर जगह बदलते हो, -x/π +1, फाइन। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे अब। ट्रिग्नोमेट्री लगाने की वजह से ये न्यूमरेटर बन जाएगा, ये अभी बताता हूँ कैसे, और डिनोमिनेटर आ जाएगा ये, है ना। ये क्या हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि sin of -x होता है -sin x, tan of -x भी होगा -tan x। ट्रिग्नोमेट्री, दोनों में से जो माइनस बाहर आएगा उसको सबसे आगे ले जाओगे, -2x वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके तो प्लस का बन जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ से यहाँ तक तो ट्रिग्नोमेट्री यूज हुई है। sin of -θ इज -sin θ, tan of -θ इज -tan θ, करेक्ट। अच्छा, अगर अभी आप देखोगे दोनों को, तो यहाँ से देखने पर ये लग रहा है कि ये ना तो इवन है ना ऑड है, क्योंकि न्यूमरेटर तो सेम आ रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर में वो माइनस का चक्कर, ठीक है। तो इससे पहले कि आप नीदर इवन नॉर ऑड देखो, आपको क्वेश्चन में पता ही है कि आपको ऑड प्रूव करना है, तो वो तो बात हो गई खत्म, ठीक है। तो इसके लिए फिर यूज होगा अपने पास क्या, इसके लिए अपने पास प्रॉपर्टी यूज होगी, है ना। अब उस प्रॉपर्टी पे जरा ध्यान दें, सुनिएगा ध्यान से। ये लास्ट पॉइंट है जो थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन सुनना पड़ेगा। ये जो x/π है, इसकी वैल्यू जो है सेम आ सकती है या फिर कम आ सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि इंटीजर है कि नहीं, राइट। अगर मैं बॉक्स के अंदर 5 रखता हूँ तो 5 आ जाता है, राइट, लेकिन अगर 5.1 रखता हूँ तो फिर तो भी 5 आता है, पर यहाँ तो सेम आ रहा है, इसमें कम आ रहा है, ऐसे होता है ना, इंटीजर के हिसाब से डिपेंड करता है। तो इससे रिलेटेड एक रिजल्ट था अपने पास, प्रॉपर्टी थी ग्रेटेस्ट इंटीजर में, इस पर कोई सवाल तो अभी तक नहीं आया, अब आ गया। वो क्या थी, पहले मैं उस रिजल्ट को लिखता हूँ। मैंने आपको ये बताया था, ये रिजल्ट इज इक्वल टू 0 इफ x इज इंटीजर, है ना, और -1 इफ x इज नॉट एन इंटीजर, याद आ रहा होगा आपको। अब आपको क्या करना है, उसी की जगह अब आपको x/π रखना है। ध्यान से देखिएगा, आप ये सोचें कि x का काम x/π कर रहा है, तो इसका आंसर 0 भी होगा और इसका आंसर -1 भी होगा, ठीक है। 0 कब होगा, जब ये जो x का काम कर रहा है ये इंटीजर होगा। तो ये मैंने जो लिखा है ना, x/π इज इक्वल टू n, n क्या है यहाँ पर, n इंटीजर है, वही मैं ऊपर वाली बात ही लिख रहा हूँ। और -1 कब आएगा इसका आंसर, जब x/π इंटीजर नहीं होगा, ठीक है, इंटीजर नहीं होगा। तो अभी मुझे पता ही नहीं है ना कि क्या है इसमें, तो मुझे बनाने पड़ेंगे केसेस बना रहा हूँ मैं, ठीक है, केसेस बना रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। केसेस किसके अकॉर्डिंग बनेंगे, ये जो लिख रहा है यहाँ पर, ये जो 2 ब्रांचेस हैं उसके अकॉर्डिंग केसेस बनेंगे, बहुत ही ध्यान से सुनना। केस 1, इफ x/π इक्वल्स n वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, इसका मतलब
x इज इक्वल टू एन पाई, पहला केस, और दूसरा केस होगा x इज नॉट इज इक्वल टू एन पाई। तो अब कोई बोलेगा कि ये x इज इक्वल टू एन पाई कहाँ पे रखना है, f माइनस एक्स और एफ एक्स में रिलेशन कैसे दिखाएं? मैं कहूँगा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इसका मतलब तो ये हो गया पहले केस के अंडर में कि एफ एक्स बराबर 0। जब मैं x इज इक्वल टू एन पाई ले रहा हूँ इस ब्रांच में, ऊपर वाली ब्रांच, ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली बोल दिया कि एफ एक्स की वैल्यू 0 है। हु विल एक्सप्लेन दिस वाई इट इज 0? कौन बता सकता है? हाउ कम आई हैव रिटन एफ एक्स एज 0 डायरेक्टली? यस प्लीज। Explain your answer. You were saying something. Anyone else? Why fx is 0? So sin x and this won't be there because it's n pi, right? देखो ये जो x n पाई है ना, x जो n पाई है इसमें एफ एक्स की जगह रख दो, जहाँ भी एफ एक्स दिख रहा है, सबसे ऊपर भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख, देखो यहाँ पे रख लेते हैं। चलो इसमें जब x को n पाई रखोगे तुम कहोगे सर डिनोमिनेटर में रखूँ, वो रख लेना, न्यूमरेटर में देख लो पहले यहाँ पे स्पेशली। ये साइन n पाई क्या होता है? 0। टेन n पाई क्या होता है? 0। 0 प्लस 0 0, और उसका सबसे मल्टीप्लाई होगा तो एफ एक्स बराबर 0। और आप याद करो कि जब ऐसा था तो मैंने आपको बताया था कि एकमात्र ऐसा फंक्शन है जो ऑड भी होता है इवन भी होता है। सो दिस इज ऑड एज वेल एज इवन, ऑड एज वेल एज इवन। ये तो हुआ एक पार्ट, एक ब्रांच, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये बात तो खत्म ही हो गई कि सर एफ ऑफ माइनस एक्स में नहीं रखा, या सर एफ एक्स और एफ माइनस एक्स में रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि पहली स्टेप पे ही जब 0 हो गया तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। वो सेकंड केस में करना पड़ेगा। कैसे? केस 2, इफ वो दूसरी ब्रांच x अपॉन पाई अगर मान लो इंटीजर नहीं है, इसका मतलब x n पाई नहीं है, तो x n पाई नहीं है तो उस केस में आपके पास ये वैल्यू आएगी कि इन दोनों का सम -1 होता है। क्या? तो यहाँ से आप क्या लिखोगे उस ब्रांच का यूज़ करते हुए कि x अपॉन पाई का बॉक्स प्लस माइनस एक्स अपॉन पाई का बॉक्स इज इक्वल टू -1। कोई कहेगा सर ऐसा पिछले वाले केस में क्यों नहीं किया कि दोनों का सम 0 है? ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना, क्योंकि साइन और टेन ने पूरे फंक्शन की वैल्यू ही 0 कर दी, तो फिर मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन इसमें पड़ेगी, क्योंकि एन पाई नहीं है तो साइन और टेन 0 नहीं बनेंगे, तो मुझे क्वेश्चन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आगे बढ़ाने के लिए मैं देखो ये रिजल्ट यूज़ करूँगा कि माइनस एक्स अपॉन पाई की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ। अब कोई बोलेगा इस वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे? जहाँ पे सवाल को रोका था, यहाँ पे देखो, देयरफॉर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x साइन एक्स प्लस टेन एक्स, डिनोमिनेटर में 2 इंटू -1 माइनस ऑफ एक्स अपॉन पाई प्लस 1, ठीक है। ब्रैकेट जरूर बनाना ध्यान से, यहाँ ब्रैकेट बनेगा, 1 तो बाहर था। ये क्या बन गया? दिस इज 2x साइन एक्स प्लस टेन एक्स, डिनोमिनेटर को आप खुद ही देख लीजिए, 2 इंटू -1 -2 प्लस 1 तो -1 आ जाएगा, और एक -2 का इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। Finally, last step, you can take this minus common from denominator and write it like this, minus 2x sin x plus 10x into में ये। अब कोई बोलेगा ये क्या बन गया? ये माइनस एफ एक्स बन गया। कहाँ पर? एफ एक्स देख लो ना, ये रहा एफ एक्स ग्रीन बॉक्स में बंद, सबसे ऊपर लेफ्ट में, 2x sin x plus 10x अपॉन ये उसी का नेगेटिव ही तो है। इसका मतलब यहाँ से आपने क्या प्रूव कर दिया? एफ इज ऑड। कुल मिला के फ्रॉम 1 and 2 यू हैव शोड दैट एफ इज ऑड। 1 and 2 कौन से? ये, क्योंकि पहला फंक्शन कह रहा है कि ऑड भी हो सकता है इवन भी हो सकता है, दूसरे ने कह दिया कि ऑड है, तो फाइनली इट इज ऑड फंक्शन। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बार मैं इसको पूरा स्क्रीन पे, ऐसे तो नहीं आएगा क्लियरली, पहले मैं इसको जूम कर देता हूँ। यू वांट टू नोट इट डाउन, ये केस 1 तक आप देख लो।
सो एज आई एम रिपीटिंग कॉन्स्टेंटली, चैप्टर तो इम्पोर्टेंट है ही बहुत ज़्यादा, इसके बिना तो कुछ है ही नहीं है 12th में आगे। इसके साथ साथ जो क्वेश्चंस हैं जिनको आपको देख के लगता है कि पहली बार में तो समझ भी नहीं आया कि क्या करना चाहिए था, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली रिपीट देम, ओनली देन यू विल बिकम कंफर्टेबल। ठीक है, तो डीपीपी डिस्कशन के बाद उसको करना होता है वापस से। सो दिस इज स्टिल केस 1। इसके बाद दिस इज योर केस, ये केस 2 तक ये है। So this was your DPP 8. Now DPP 7, इसमें 3 क्वेश्चन बचे थे, 2nd, 8th एंड 10th, राइट। DPP 7, तो क्वेश्चन नंबर 8, इसमें जो फंक्शन है इसका डोमेन निकालना है, 1 - 5 to the power x अपॉन 7 to the power -x -7. Okay, just wait. सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं, 8th वाले को। डोमेन निकालना था इसमें, करेक्ट। सो ये जो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है ये रूट के अंदर है, तो रूल क्या है डोमेन का कि भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर एक चक्कर है, मैंने ये बोला था कि वेन एवर देयर इज इनइक्वालिटी वी विल यूज वेवी कर मेथड, राइट, और उसके लिए हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं और वो सारी बातें हैं। बट देन देयर शुड बी अल्जेब्रिक टर्म्स। अल्जेब्रिक मतलब वही एक्स वगैरह वाले, स्क्वायर हो, क्यूब हो, फैक्टर बने हो। यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो अगर ऐसा कुछ नहीं है देन वी विल यूज बेसिक मैथमेटिक्स। वो क्या है भाई? बेसिक मैथमेटिक्स जो मैंने सर्कल में बंद किया, इसको समझो कि 2 नंबर का डिवीजन पॉजिटिव है। 2 नंबर्स का डिवीजन पॉजिटिव है या 0 भी हो सकता है, तो 2 बातें होंगी, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। न्यूमरेटर पॉजिटिव या 0 हो जाए और डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाए। देखो बहुत ही ध्यान से समझना, जब 2 नंबर्स का डिवीजन पॉजिटिव होता है तो हम बोलते हैं दोनों प्लस के हो जाएं या दोनों माइनस के, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है तो न्यूमरेटर में 0 भी हो सकता है, वही तो लिख रहा हूँ मैं। तो केस 1 क्या है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पॉजिटिव एंड न्यूमरेटर कैन बी 0 ऑल्सो। और केस 2 क्या है? और या फिर क्या हो सकता है कि दोनों नेगेटिव हो जाएं और ऊपर वाली वैल्यू 0 भी हो जाए, राइट। अब आप जानते हैं कि एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है और का मतलब यूनियन होता है। बस सॉल्व कर देंगे। अब सॉल्व कैसे होगा देखिए। तो इसका मतलब क्या है कि 1 5 की पावर x से बड़ा है, यानी ऐसा।
कुछ बातें मैंने आपको बताई थी इनइक्वालिटी में। मैंने ये बोला था कि अगर दोनों तरफ बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, याद आ रहा है? तो इसीलिए x लेस देन इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व करेंगे, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, तो इसका मतलब माइनस एक्स 1 से बड़ा, क्योंकि 7 है दोनों तरफ, लेकिन -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। So could you explain how you got both the cases again? वेयर वर यू? So I didn't understand. ओके, मैंने कोई भी ऐसी बात नहीं बोली है जो बहुत डिफ़िकल्ट हो समझने में। आप सुनिए दोबारा। a अपॉन बी इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये किस फॉर्म का है? दो नंबर्स के डिवीजन के फॉर्म का। ओके, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चाहते हैं कि उनका डिवीजन हो जाए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव हो जाए या 0 हो जाए। तो ऐसा कब हो सकता है? व्हेन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर पॉजिटिव, या फिर बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर नेगेटिव। वही तो लिखा है, केस 1 में तो दोनों पॉजिटिव हैं, केस 2 में दोनों नेगेटिव हैं। फिर ये इक्वल टू का साइन क्यों आ रहा है? क्योंकि इक्वल टू का साइन क्वेश्चन में भी है। तो इक्वल टू 0 किसकी वजह से हो सकता है? ए की वजह से हो सकता है, न्यूमरेटर की वजह से, है ना? तो इसलिए न्यूमरेटर वाले एक्सप्रेशंस पे इक्वल टू का साइन भी लगा हुआ है। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो अब मैं लास्ट में यहाँ पे फिर मैंने आपको बताया कि इन इनइक्वालिटीज़ को जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो एंड आएगा, बोथ मस्ट बी पॉजिटिव और बोथ मस्ट बी नेगेटिव। सो व्हेन आई एम यूज सॉल्विंग दीज, तो फिर ये -1 से छोटा और 0 या 0 से छोटा, इसको कैसे सॉल्व करोगे? इंटरसेक्शन लेके। तो मैंने ये यहाँ पे बनाया हुआ है, एक -1 से लेस देन के लिए, एक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। सो व्हाट इज द आंसर? ये आंसर आ रहा है, -∞ to -1 is the answer from case 1. Now let us proceed in case 2. ये 1 को 5 की पावर 0 लिख लिया, दोनों तरफ 5 है बेस, तो इनइक्वालिटी का साइन भी वही रहेगा। एक ही चीज़ तो यूज़ होती है बार बार, जैसे कि ये है, इसका मतलब ऐसे लिखोगे, जिसका मतलब -x लेस देन 1। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साइन बदल जाएगा। वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व क्या, इंटरसेक्शन देख रहे हो, तो -1 और 0 को प्लॉट करते हुए ये तो दूसरी इनइक्वालिटी ग्रेटर देन -1, और ये पहली वाली, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन क्या आएगा? 0 to ∞। फाइनली व्हाट इज देयर इन बिटवीन? और का मतलब वैसे भी आपको बता चुका हूँ, केस 1 और केस 2 का यूनियन लेते हैं, राइट? So what will be the final answer or the domain of this? -∞ to -1 union 0 close to infinity open। ये आपका आंसर आ गया। अभी आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, अगर कोई स्टेप समझ में नहीं आई है, नाउ यू कैन आस्क। तो इसका मतलब ये है कि जब भी x को आप इसमें से, इन इंटरवल में से सेलेक्ट करके f(x) में पुट करोगे, सो यू विल ऑलवेज गेट सम डिफाइंड वैल्यू इनसाइड रूट। डिफाइंड मतलब वो या तो पॉजिटिव होगी या 0 होगी, ये मतलब हो। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। Okay, no doubt, then let's proceed. See, today I won't be sharing any DPP, okay? Because ये equal identical function पे तो इतना कुछ खास बनेगा नहीं। So you have one day that you can solve the DPP on range, अगर नहीं की थी तो, ठीक है, do them. Then tomorrow I'll be sharing the DPPs. Okay, let's solve the remaining 2 questions. उसमें एक तो ये है, जो 10th वाला क्वेश्चन है वो दिखने में डिफिकल्ट है, पर है कुछ नहीं उसमें। सभी के आपको डोमेन निकाल के इंटरसेक्शन लेना है। 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर क्लास में कराया हुआ सवाल है। log 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -5, जस्ट अ मोमेंट।
Yeah, 2 fractional part of x. X square minus 3x plus 10 plus 1 upon अंडर रूट 1 माइनस मॉड x. ठीक है ना, ये क्वेश्चन है. इसमें पहला वाला पार्ट है 1 अपॉन इंटीजर x, दूसरा वाला है log ऑफ दिस नंबर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 अपॉन दिस 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 5, और तीसरा है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस मॉडुलस x. Now who can tell me the domain of such a big function just by observation? कौन है जो मुझे देखकर ही इसका आंसर बता देगा कि ये आंसर है, दिस इज द रीजन? हु विल टेल मी? आंसर इज वेरी इजी एंड इट इज ऑब्वियस. ऐसा आंसर है, कौन बताएगा? Domain. सॉरी, या डोमेन? So there are no values. No values is your answer. Why it is so? So because of the 1 by root 1 minus modulus of x. No, why? See, let me give you one value. Take x as half. You put half here. Root will be defined. It will be 1 minus half. Half का root तो होता ही है, तो no problem with this. Anybody else? Sir, because of the base of the log. Sorry, because of? The base of the log. And why it is so? Because that fractional part will be tending to 0, so it will be negative, which is not possible. You are almost correct, but you are not able to explain properly. But I hope I understand what you are trying to say. But we have to explain this. सुनो भाई, पहला और तीसरे का डोमेन कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता. इसका डोमेन तो फाई है, इसका डोमेन तो फाई है, और इसका डोमेन फाई पता है क्यों है? देखो इधर, कुछ भी x हो, ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है कि नहीं? फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है. 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और 5 सब्ट्रैक्ट कर दो. वेट, हेलो सर, जस्ट अ मिनट, क्लास इज गोइंग, आई विल कॉल यू बैक. यस सर, ओके. Okay, so fractional part is from 0 to 1. Multiply this inequality by 2 and then we subtract 5 from each. ठीक है, सब में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो. दैट इज द आंसर. आप क्या देख रहे हो? हम देख रहे हैं कि इसका बेस नेगेटिव हो रहा है, करेक्ट? एंड यू नो दैट log m to the base a is defined when m positive, a positive, a not equal to 1. ये लो, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या? नहीं हो रही. इसका बेस पॉजिटिव हो रहा है? नहीं हो रहा. अंडरस्टूड? दिस इज द रीजन. तो भाई एक बात बताओ कि ये जो मिडल वाला फंक्शन है इसका डोमेन है फाई, मतलब ये तो डिफाइन हो ही नहीं सकता किसी भी x के लिए. क्यों? क्योंकि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, चाहे कुछ भी x हो, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू तो 0 से 1 के बीच में ही हो सकती है. और अगर ये सिचुएशन है कि कुछ भी x रखने पे 0 से 1 है, जिसके वजह से इसकी वैल्यू -5 से -3 के बीच में आ रही है, मतलब ये बेस तो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, तो इसका डोमेन मतलब डिफाइंड नहीं होगा. तो जब मिडिल वाले का डोमेन फाई है तो पहले और तीसरे का डोमेन कुछ भी आ जाए क्या फ़र्क पड़ता है? बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू टेक द इंटरसेक्शन. मैंने क्या बोला था? इसका डोमेन निकालोगे, रेड वाले का निकालोगे, ब्लू वाले का निकालोगे, तीनों का इंटरसेक्शन लोगे. लेकिन अगर एक, आपने क्या पढ़ा है सेट में, ए इंटरसेक्शन फाई क्या होता है? फाई होता है. देन वाई आई विल वेस्ट माई टाइम टू फाइंड द डोमेन ऑफ अदर्स. हालांकि दूसरों का डोमेन भी बहुत आसान है, क्योंकि पहला वाला तो क्लास एग्जाम्पल है. r-0 से 1 ओपन ऐसे आएगा. फर्स्ट वाले का आंसर ये होगा, ये क्लास में कराया हुआ है. जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला उसका डोमेन ये आएगा -1 to 1, है ना? ये डोमेन होगा इसका
और ये डोमेन होगा इसका, और इसका डोमेन क्या है, ये है, और तीनों का इंटरसेक्शन फाई है, ये कह रहा हूँ, ठीक है। तो सिर्फ दिखने में टफ था, है कुछ नहीं सवाल में। तो ये भी क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट? बिकॉज देन आई एम गोइंग टू सॉल्व द लास्ट वन। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन जिसमें इसका डोमेन निकालना है, ये बढ़िया सवाल है। तो इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, ये तो वही D1 इंटरसेक्शन D2 वाली बात हो गई है ना। एक तो हम इसका डोमेन निकालेंगे, और फिर मतलब जो है रूट साइन एक्स और दोनों का इंटरसेक्शन। तो मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, देखो मेरा जो तरीका है वो सुनना ध्यान से, अच्छा सवाल है तो तरीका भी अच्छा होगा इसका। सबसे पहले फॉर रूट टू बी डिफाइंड, फॉर रूट टू बी डिफाइंड 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -1 से मल्टीप्लाई कर लो। ये तो बेबीकर मेथड से हो जाएगा, राइट, बेबीकर मेथड से हो जाएगा। बेबीकर पे ये प्लॉट कर दिया, प्लस माइनस प्लस, करेक्ट। बेबीकर पे प्लॉट कर दिया फैक्टर्स को 0 करके, और प्लस माइनस प्लस, फाइन। अब इसमें क्या करना है, कौन सा वाला साइन देखना है इनइक्वालिटी का, लेस देन इक्वल टू 0, ये लेस देन इक्वल टू 0 प्लॉट कर दिया, क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन देखो, x की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए। तो ये बनाया आपने, ये तो x की वैल्यू क्या आ रही है, -4 से 4। अब यहाँ पर आप बस 1 मिनट ध्यान दो, अभी आप दूसरे का डोमेन निकालोगे, यहाँ पे सुनना है बस 2 मिनट। अभी आप दूसरे का डोमेन निकालोगे, उससे x की वैल्यू आएंगी, और अल्टीमेटली दोनों का क्या लोगे, इंटरसेक्शन लोगे, करेक्ट, ऐसा ही होगा। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ना साइन का ग्राफ बनाने वाला हूँ, साइन का ग्राफ बनाया मैंने, ये देखो, साइन का ग्राफ बनाएंगे तो ये 0 है, ये पाई है, ये माइनस पाई है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, दूसरे का डोमेन -4 से 4 क्लोज आया है, और मुझे अब वो x चाहिए, अब मुझे वो x चाहिए जो साइन x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दें, ठीक है। मुझे वो x चाहिए जो साइन x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दें, क्योंकि वो रूट के अंदर है। तो ऐसे तो बहुत सारे x होंगे जिसके लिए साइन x की वैल्यू पॉजिटिव या 0 होगी, लेकिन मैं सिर्फ वो वाले x ही देखूंगा जो इसके आसपास हो। किसके आसपास, इस आंसर के आसपास। क्यों, क्योंकि जो x आ रहा है वो -4 to 4 आ रहा है पहले वाले से, तो दूसरे वाले में मुझे देखना होगा कि -4 से 4 के आसपास वो कौन से x हैं जिसके लिए साइन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए, क्योंकि इंटरसेक्शन ही तो लेते हैं ना, इसीलिए। तो अब आप ध्यान से देखिए, जो ग्राफ है इसमें मैं 2 नंबर्स प्लॉट कर रहा हूँ, यहाँ पर आपके सामने मैंने प्लॉट किया अभी 0 और पाई और माइनस पाई तो सभी जानते हैं। मैंने पाई के थोड़ा सा आगे 4 बना दिया, क्यों, क्योंकि पाई है 3.14 और पाई 3.14, तो उसके आगे 4 होगा। इसी तरह से -4 माइनस पाई के पीछे होगा। इसमें जो कुछ पोर्शंस आपको दिख रहे हैं, अब मैं उनको ग्रीन कलर से यहाँ पर कर रहा हूँ मार्क, ये वो पोर्शन है 0 से 4 में, ध्यान देना, ये वो पोर्शन है 0 से 4 में जिसके लिए साइन की वैल्यू पॉजिटिव है या 0 है, और ये पोर्शन यहाँ पर भी है, इधर ये भी वो पोर्शन है -4 से 0 में जिसके लिए साइन की वैल्यू पॉजिटिव या 0 है। बाकी जो मैंने साइन का हिस्सा है इसके बीच में शेड नहीं किया है, वो क्यों नहीं किया, मतलब -पाई से 0 वाला जो ब्लैक वाला है और पाई से 4 तक जो ब्लैक वाला साइन का कर्व है, वो मैंने क्यों नहीं ग्रीन किया, क्योंकि वो मेरे आंसर का पार्ट नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि भाई ये तो इस रूट की बात थी। फॉर दिस रूट टू बी डिफाइंड मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि साइन एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब पॉजिटिव या 0। और फिर मैंने आपसे ये बोला कि वो जो आंसर आएगा वो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा।
तो एक बात तो क्लियर है कि आंसर -4 से 4 इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, इंटरसेक्शन में तो कॉमन पार्ट आता है। तो मैंने इसी वाले इंटरवल में sin x का ग्राफ देख लिया और उसमें मैंने देखा कि कुछ ही ऐसा पार्ट है जिसके लिए साइन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रही है और वही बनेगा इस क्वेश्चन का डोमेन। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो जो भी इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मुझे बताना चाहिए था, आई हैव टोल्ड यू। अगर किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो मुझसे, अदरवाइज क्लास इज ओवर। DPP 9 विल बी डिस्कस टुमारो। आप इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन रिवाइज करें, इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज दैट्स इट फॉर टुडे।